کرائم اس وقت تو دنیا میں ہو رہے ہیں، بڈھے نہیں کر رہے ہیں بلکہ جوان ہی کر رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے چلے جائیں، دہشت گردی کا معاملہ ہو تو بھی آپ کو جوان ہی نظر آئیں گے، چوری کا معاملہ ہو تو زیادہ تر جوان ہی نظر آئیں گے، زنا کے اڈوں کا معاملہ ہو تو زیادہ تر جوان ہی نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھ لو، اللہ اکبر، اگر بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرانے کا معاملہ ہو تو کسی بڈھے نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم نہیں لہرایا، بلکہ اسلام کا پرچم بیت المقدس پر جوان ہی نے لہرایا۔ اس جوان کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور علی، فیضان سرکار بابو حضور، فیضان حضور امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اندلس کے ساحل پر جس نے کشتیاں جلائی تھی اسلام کے نام پر، وہ کوئی بڈھا نہیں تھا بلکہ وہ حضرت طارق ابن زیاد، وہ بھی نوجوان تھے۔ اسی طریقے سے بدر کے جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان تھے، احد کے سارے فاتحین وہ سب کے سب جوان تھے، خندق کھودنے والوں میں زیادہ تر تعداد جوانوں کی تھی، اور جس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینکا تھا وہ کوئی بڈھا نہیں تھا، وہ تو ایسا جوان تھا جس کی جوانی مصطفیٰ جان رحمت نے یوں بیان فرمائی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کی طرح کوئی جوان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگر جوان بگڑ جائے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اگر جوان بگڑ جائے تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر جوان سدھر جائے تو تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے۔ آج کے اس ہما ہمی کے اس جلسے کے ماحول میں میں اتنا ہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم اپنی قوم کا سرمایہ ہو، اے میری قوم کے جوانوں، تم صرف اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، تم صرف اپنی ماں کی امیدیں نہیں ہو، تم صرف اپنے گھر کا چشم و چراغ نہیں ہو، بلکہ اے جوانوں تم ملت کا سرمایہ ہو، تم قوم کا سرمایہ ہو۔ یاد رکھنا، جب کسی قوم کا جوان احساس کر لیتا ہے، جب کسی قوم کا جوان جینے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے، جب کسی قوم کا جوان شعور بندگی سیکھ لیتا ہے، تو اس قوم کی حالت یہ ہوتی ہے، اس قوم کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس قوم کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ جوان ہے، اگر یہ انقلاب اپنے اندر پیدا کر لیں تو ایک بڑا انقلاب آئے گا، اس لیے کہ ہر انقلابی آپ کو جوان ہی نظر آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جوانوں کی قدر کرو۔ ایک بات آپ سن لیں، اللہ اکبر، ہر مذہب میں بڈھوں کو آگے کیا جاتا ہے، مگر مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا نے ہر جگہ جوانوں کو آگے کیا ہے، یعنی بڈھوں کی توہین بھی نہیں کی، بڈھوں کی تذلیل بھی نہیں کی، مگر آگے جوانوں کو کیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ رسول کو جوانی اتنی پسند ہے کہ جب اللہ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو بڈھوں کی حیثیت سے نہیں کرائے گا، بلکہ پہلے بندوں کو جوانی عطا کرے گا، اس کے بعد دیدار کا شرف۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ جنت میں لوگ بڈھے نہیں ہوں گے، جنت میں لوگ جوان ہوں گے، یعنی جب اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا،
जब इंसान अल्लाह से मिलेंगे तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के जमाल की जियारत करते वक्त अल्लाह सबको जवानी अता फरमाएगा। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, लोगों जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो। आका ने फरमाया कि जब ऐलान नबूवत किया गया मक्के की जमीन पर, तो मक्के के बुड्ढों ने अल्लाह के नबी को झुटलाया और मक्के के जवानों ने अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही दी, हुजूर की नबूवत पर ईमान लाए। यानी सैयदना सिद्दीक अकबर ईमान लाए, वो उस वक्त तो जवान थे। फारूक आजम जो ईमान लाए उस वक्त तो जवान थे। उस्मान गनी जो ईमान लाए उस वक्त तो जवान थे। मौला अली जब ईमान लाए तो जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ रहे थे। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। इसीलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें अक्सर जवानों को टारगेट करती है और जवानों को बिगाड़ने की कोशिश करती है। दुनिया जानती है अगर मुस्लिम जवानों को हमने बिगाड़ दिया, अगर हमने इनकी सोच को बर्बाद कर दिया, इनकी फिक्र को बर्बाद कर दिया, तो ये कौम कभी उठ नहीं सकेगी। इस कौम को बर्बाद करना आसान होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अल्लाह अकबर, जंगी हथियार हजारों की तादाद में किसी कौम को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना जवानों का बिगड़ना नुकसान पहुंचाता है। जरा ध्यान से सुनना मेरी गुफ्तगू को, रस्मी तौर पर आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना। इस मौसम में महफिल में आने वाले मेरी कौम के जवानों, हम तुम पर नाश करते हैं, हमारी कौम तुम पर नाश करती है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जरा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर, हजारों जंग के हथियार किसी कौम को बर्बाद करने के लिए उतना नुकसानदेह नहीं होते जितना जवानों का बिगड़ना। इसलिए कि किसी कौम का जवान अगर बिगड़ जाता है तो उस कौम को बर्बाद कर दिया जाता है, वो कौम तबाह कर दी जाती है। क्योंकि जवान एक जवान नहीं होता, वो पूरे घर का सरमाया होता है, वो पूरे मोहल्ले का सरमाया होता है, वो पूरी कौम का सरमाया होता है। आज जो है दुनिया हमारे जवानों को बिगाड़ रही है और आप भी बड़ी आसानी के साथ गुनाहों के अड्डों पर जा रहे हो, बुराइयों के अड्डों पर जा रहे हो। अल्लाह अकबर, नित नए अंदाज से बुराइयां हमारे समाज में जन्म ले रही है। दरअसल जवानों की एक कमजोरी होती है, जवान बुराई को भी जल्दी कबूल करते हैं और अच्छाई को भी जल्दी कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर, आज हमारा जवान गुनाहों की तरफ जा रहा है। खास तौर पर नौजवानों को नशे में मुब्तला करने की नापाक कोशिश की जा रही है। 16-16, 17-17 साल के हमारे लड़के और छोकरे नशे की लानत में मुब्तला हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने बहुत शातिराना अंदाज में तुम्हें नशे की तरफ बुलाया है। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, जब तुम नशा करोगे तो स्टडी कब करोगे, किताबों का मुताला कब करोगे, एग्जाम की तैयारी कब करोगे। जो बच्चा एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा वो कामयाब कैसे हो सकता है। इसी तरीके से अगर तुम नशा करोगे तो तिजारत पर तुम कब जाओगे, काम धाम कब करोगे, नौकरी कब करोगे। अब बताओ, जो कमाएगा नहीं उसके घर का कामकाज कैसे चलेगा। अलादीन का चिराग तो तुम्हारे घरों में होगा नहीं, ये बात याद रखना। वैसे भी अलादीन के चिराग की कोई हैसियत नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सब झूठी कहानियां, अलादीन का चिराग वगैरह। मुझे बताइए, जब अल्लाह के रसूल खुद बाजार में जाके माल कमा करके लाते हैं तो किसके घर में अलादीन का चिराग हो सकता है। अरे करोड़ों जिन्नात जिसकी नालैन के गुलाम हो, वो रसूल बाजार जा करके तिजारत करके और कमा के खा के हमें बता रहे हैं कि हाथ पर हाथ रगड़ कर पैसे नहीं आते। दौलत कमाने के लिए अल्लाह के रसूल भी बाजार तशरीफ ले जाते हैं। इसलिए याद रखना, बगैर मेहनत के न किसी के पास माल आ सकता है न माल आता है। इसलिए मेहनत करो। अब मुझे बताओ, जब तुम नशा करोगे तो तुम नौकरी नहीं कर सकते, जब तुम नशा करोगे तो तुम तिजारत नहीं कर सकते, जब तुम
नशा करोगे, अल्लाह अकबर, पैसा आएगा नहीं और मुफ्त में नशा होता नहीं। तो याद रखना, जब आदमी के पास पैसा आएगा नहीं और उसका खर्चा होता रहेगा तो वो क्या करेगा? या तो वो घर के पैसे चुराएगा या तो वो कौम के पैसे चुराएगा। याद रखना, ये जो चोर बनते हैं नशे की वजह से बनते हैं, ये जो डाकू बनते हैं नशे की वजह से बनते हैं। और एक बात मैं आपसे कह दूं, अल्लाह अकबर, दूर और नजदीक से आने वालों, नशा हर गुनाह की जड़ है, नशा हर बुराई की जड़ है। एक मर्तबा सहाबा किराम के दरमियान बहस शुरू हुई अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद कि सबसे बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे बदतरीन गुनाह कौन सा है। किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, मगर हजरत सैयदुना फारूक आजम ने फरमाया, जाओ अम्र इब्ने आस के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस से पूछो कि सबसे बदतरीन और बुरा गुनाह कौन सा है। तो अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने कहा, सबसे बदतरीन गुनाह नशा करना, सबसे बड़ा और बुरा गुनाह नशा करना है। जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस जूनियर सहाबा में थे। रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में वो नन्हे से बच्चे थे, इब्तिदाई जवानी उन्होंने हुजूर के ज़ाहिरी दौर में तय की थी और इधर सीनियर सहाबा की महफिल बैठी थी। तो फारूक आजम ने कहा, उन्होंने कैसे कह दिया कि सबसे बदतरीन गुनाह नशा करना है, शराब पीना सबसे बदतरीन गुनाह है, बुलाओ उनको और दलील पूछो। उनको बुलाया गया तो उन्होंने दलील दी। दिल के कानों से सुनना, जलसे का मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। बहुत अहम पैगाम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमारे बिरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मुफ्ती सज्जाद बरकाती साहब ने मुझे हालात के कुछ इशारे दिए। वैसे हिंदुस्तान में जहां भी जाऊं तो हालात सब जगह यकसा है। ऐसा नहीं है कि मुंबई और बिहार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं है। जो हालात नौजवानों के मुंबई में है, कमोबेश वही बिहार में भी है, कमोबेश वही बंगाल में भी है, कमोबेश वही गुजरात में भी है, बस कम ज्यादा है। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, इसलिए कि हमारे जवानों को जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे जवान हमारी बातों पे अमल करते हैं। इसीलिए तो हम फख्र से कहते हैं कि दूसरे मजहब के लोग ऐसे मौसम में अपनी कौम को बिठा कर बताएं जैसे हमारे नौजवान ऐसे मौसम में बैठते हैं। और जगह अगर बारिश हो तो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, वजह क्योंकि और जगह भगोड़ों की जो है वो लोगों ने रिवायत कायम की है, मगर इस्लाम वाले